classes, we have completed the story The Lost Child. So student, the three stories, all the three stories of your syllabus have been completed. The Gold Watch, An Astrologer's Day and The Lost Child. And question answers related with the Gold Watch and An Astrologer's have been provided through the PDF. And one is left, that one is The Lost Child, and in coming PDF you will be provided your notes related with the short story The Lost Child. So your prose section and your short story section have been completed. And once again I am going to repeat that The Merchant of Venice has been excluded from your syllabus by your UP government because of COVID-19. So only 2 poems are left related with literature part in your intermediate syllabus, and they are My Heaven and last one, The Song of the Free. Okay, the Stopping by Boats on a Snowy Evening that have been reduced by the government. So these 2 poems will continue, and after completing the poems you will get PDF question related notes in PDF form in your group. So student, let us start today our topic, that is the poem My Heaven. My Heaven is very important poem as far as explanation is concerned and as far as central idea is concerned. Okay, the poem is composed by Rabindranath Tagore. I think all of you are very well familiar with this name. Rabindranath Tagore is one of the greatest poets of 20th century, and he belongs the Anglo-Indian poets. Anglo-Indian poets, you know, the poet, writer, novelist who belongs from India, but they have contributed their rich contribution in literature of English. So here, as far as Bengal is concerned, many Bengali poets, writers, novelists and artists have given a rich contribution in English literature. As he was born in 1861 in an aristocratic family, in a royal family, and he inherited the faith in religion and the study of Vedas and the rich cultural heritage of India from his family. As his father Rabindranath Tagore was also a great person, he was a great literary person, and her mother was very religious minded lady. So the boy Rabin was brought up under the rich cultural values and morals of India. And when he was young, he started to compose poem. As far as it is concerned with Rabindranath Tagore, this is said that no aspect of literature was untouched by Rabindranath Tagore. Whether poetry, whether novels, and whether short stories, dramas, every form of literature, every aspect of literature was touched by Rabindranath Tagore. Not only touched, but he gave excellent performance, excellent work in the form of literature. He founded Vishwa Bharati, and he was awarded for his greatest work, Gitanjali. Gitanjali, I think all of you have heard this name. Gitanjali means a poem of collection of poems. Gitanjali is a collection of poems, and your national anthem Jan Gan Man has been extracted from this great work Gitanjali. And this poem, My Heaven, is also extracted from this greatest work of Rabindranath Tagore, Gitanjali. For that work, he was awarded with Nobel Prize in 1930. So student, this is a brief intro related with your Rabindranath Tagore, and now let us start our poem. Today in this video lecture I will explain the poem in Hindi, and in my coming video lecture I will explain the poem in English, because the video lecture is also concerned with Hindi medium sections. So student, let us start our poem, very important poem, My Heaven, Mera Swar. Okay? This is a song composed by Rabindranath Tagore. The poem belongs pre-independence era, स्वतंत्रता से पहले का समय. And you know, this was the time
when each and every Indian was full of enthusiasm for the freedom of their nation, for the freedom of India. And the writers flow a river of national enthusiasm by his pens, by their pens. अपनी कलम से जो कवियों लेखकों ने लिखा वो भारतीयों के हृदय में देश प्रेम और देश को स्वतंत्र कराने की जो ज्वाला थी उसको निरंतर प्रज्वलित करते रहे. So student, this is the poem where poet visualizes India as a country where every citizen is free for education, is free from narrow-mindedness, and he visualizes India as an ideal country where people are follower of God, they are a true worshipper of God, they work under the guidance of God, and in this way the poem gives a glimpse of rich cultural, moral and religious values of India. And this also shows the vision of Rabindranath Tagore related with the country. The poem also shows the deep love of Rabindranath Tagore for India. So let us start our poem. What is the very important symbol of the poem? Each line of the poem is started with the word where. In total there are 8 lines in the poem, and each line is started with the word where. Okay? This is the symbol of the place where. The symbol of the place where what should be visualizes. What is visualizes by Rabindranath Tagore related with the vision of India. Okay, let us start the poem. First line is where the mind is without fear and the head is held high. कवि कल्पना करता है एक आदर्श देश की, भारत को एक आदर्श देश के रूप में विजुलाइज करता है, उसकी कल्पना करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है. लेट अस सी द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ओके, इनटू दैट हेवन ऑफ द फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे. माय फादर, मेरे पिता, यहाँ परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर से वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है और कहता है हे परम पिता परमेश्वर, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को पहुंचा दो. है ना, ईश्वर से कभी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त करो और स्वतंत्रता के उस आशीर्वादमय स्थिति में पहुंचा दो. कहाँ पहुंचा दो? वेयर, जहाँ द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई. जहाँ पर मस्तिष्क मतलब थॉट्स ऑफ द पीपल, विचारधाराएं, लोगों की विचारधाराएं बिना भय के हों. वो किसी की गुलामी या किसी के भय से प्रभावित होकर के अपनी विचारधाराएं ना बनाएं, ना सोचें, ना कल्पना करें. एंड हेड इज हेल्ड हाई, सर ऊंचा करके, मतलब आत्मसम्मान और गौरव से. हमारे भारत को हे परमपिता परमेश्वर एक ऐसा देश बना दो जहां लोग ससम्मान सर उठा करके गर्व से अपना जीवन जिए, उन्हें गुलामी में सर झुका करके जीवन न जीना पड़े. वेयर नॉलेज इज फ्री, हर लाइन का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त है ना. ज्ञान के मुक्त होने का मतलब क्या है कि संकीर्ण विचारधाराओं से ये बंटवारा न किया जाए कि पर्टिकुलर ये लोग पढ़ सकते हैं और ये लोग नहीं पढ़ सकते. शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो. शिक्षा का बंटवारा जाति, धर्म और रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर बांट करके न दिया जाए. शिक्षा को व्यवसायिक न बनाया जाए, उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर, अर्थ के आधार पर न प्रदान किया जाए. तो भारत एक ऐसा देश बने जहाँ पर ज्ञान निःशुल्क हो और संकीर्ण विचारधाराओं से जिसका बंटवारा न हो, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाए. नेक्स्ट, where the world has not been broken up into fragments. Fragments माने खंड, टुकड़े, पार्ट, अंश. Okay, by
नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो माने सक्रिय, छोटी विचारधारा, सीमित विचारधारा, और डोमेस्टिक वॉल्स मतलब होता है घरेलू दीवारें। घरेलू दीवारें, घरेलू का मतलब यहाँ पर फैमिली से नहीं, घरेलू का मतलब सक्रिय सोच, छोटी सोच से जो हम बंटवारा करते हैं, ये मेरा प्रांत है, ये उनका प्रांत है, ये मेरी भाषा है, ये उनकी भाषा है, ठीक है। तो जहाँ पर समाज को धर्म, भाषा और क्षेत्र और बोली के आधार पर बंटवारा किया जाता है, वो संकीर्ण दीवारें जो समाज को टुकड़ों में बांटती हैं, देश को टुकड़ों में बांटती हैं, समाज का विभाजन इन टुकड़ों के आधार पर न किया जाए। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, भारत को ऐसा देश बनाओ जहाँ लोग सक्रिय विचारधारा के ना हो, मतलब जहाँ पर देश के आधार पर विचारधाराएं चलें, जाति, धर्म, रंग, भेद, क्षेत्र, इनके आधार पर समाज का बंटवारा, देश का बंटवारा न किया जाए। नेक्स्ट, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द कम आउट, बाहर आते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, सत्य की गहराई से बाहर शब्द निकल कर आते हैं। क्या भावार्थ है कि जहाँ हर भारतीय सत्य का अनुकरण करता हो, सत्य बोलता हो, उसको किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा या झूठ का अवलंबन न लेना हो। वेयर टायरलेस, ये लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन दीजिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, टायर मीन्स परिश्रम, लेस माने ना होना, यानी टायरलेस, बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मीन्स एफर्ट, प्रयास करना, ओके। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, जहाँ पर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, जो हमारे प्रयास है, मेहनत है, परिश्रम है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है कि जिस देश में परिश्रम बिना थके, बिना रुके अपनी बाहें फैलाता है पूर्णता की ओर, है ना, परफेक्शन, परफेक्शन कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, साइंस के फील्ड में और शिक्षा के जगत में, जहाँ पर देश हर क्षेत्र में परफेक्शन यानी पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। लगातार वहाँ के नागरिक अपने देश को हर क्षेत्र में पूर्ण बनाने के लिए बिना रुके हुए प्रयासरत रहते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे देश को ऐसा ही देश बना दो जहाँ लोग श्रम को पूजा करें, श्रम की पूजा करें, श्रम से ही अपने देश को परफेक्ट बनाने, पूर्ण बनाने और हर क्षेत्र में प्राथमिकता प्रदान करने की कोशिश करें, प्रयास करें। नेक्स्ट वन, where the clear stream of region has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। यहाँ पे कवि करारा वार करता है अंधविश्वास पर और उन रूढ़िवादी परंपराओं पर जो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ढकेलती है, ठीक है। तो भारत को ऐसा देश बनाओ जहाँ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की स्वच्छ धारा बहती है, ठीक, जहाँ ज्ञान की गंगा, जहाँ विवेक की स्वच्छ धारा बहती हो, और वो ज्ञान की गंगा, विवेक की धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता नहीं खोती है। कहाँ नहीं खोती है? ड्रेरी डेजर्ट, सूखे रेगिस्तान में, डेड हैबिट, मृत आदतों की। तो ये मेटाफर है, तुलना की गई है। मृत आदतें क्या हैं? सूखा रेगिस्तान है। जैसे रेगिस्तान में कितनी भी अविरल धारा हो वो विलुप्त हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। वैसे ही जब तक आपके पास ज्ञान और विवेक नहीं है, आप रूढ़िवादी चीज़ों से गवर्न होते हैं, आप अंधविश्वासों से गवर्न होते हैं, तब तक आप अपने देश को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे देश के नागरिक विवेकशील हों और अपने विवेक के आधार पर अपनी मृत आदतों रूपी तृष्णा को समाप्त कर दें। यानी डिसीजन किसके आधार पर लिया जाए? ज्ञान और विवेक और तर्क के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर नहीं, ठीक। तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि कि हमारे देश के नागरिक ऐसे हों जो ज्ञान और तर्क के आधार पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो हमारी प्रगति के लिए तत्पर हैं और समर्थ हैं। और आप
अपने अंधविश्वास को वैसे ही त्याग दें जैसे मृत आदतें त्याग दी जाती हैं। ठीक, लास्ट है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जहाँ पर मस्तिष्क लेड मानी चलाया जाता है तुम्हारे द्वारा, यानी थी यानी यू, तुम, और इसका टी कैपिटल है जो गॉड के लिए आया है। तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, थॉट एंड एक्शन यानी विचार और कर्म दोनों में किसका पथ प्रदर्शन होना चाहिए, किसका गाइडेंस होना चाहिए, ईश्वर का। यानी जो लोग सोचें और जो कुछ करें वो ईश्वर के मार्गदर्शन पर ही करें। ईश्वर को अपना सब कुछ मान करके कि ईश्वर ही सर्वे सर्वा है, उसके आधार पर ईश्वर को प्रेरणा स्रोत मानकर अपने कर्मों को करें, अपने विचारों को सोचें। Into that heaven of freedom, my father let my country awake। तो इस तरह से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अब विजुअलाइज करते हैं एक आदर्श भारत की और एक आदर्श देश की। अपने भारत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वतंत्रता के उस आशीर्वाद में स्थिति में हमारे देश को पहुंचा दें जहां लोग निर्भीक होकर जिए, आत्मसम्मान से जिए, जहां समाज का बंटवारा जाति रंग भेद आधार पर ना हो, जहां ज्ञान सभी को समान रूप से दिया जाए, जहां के लोग जहां के नागरिक सत्य का पालन करें, जहां लोग बिना रुके बिना थके अथक प्रयास करें ताकि उनके देश में पूर्णता आ सके हर फील्ड में, जहां लोग अपने विवेक अपने ज्ञान को इस्तेमाल करें, अंधविश्वास से दूर रहें और अपना विचार और अपने कार्य ईश्वर के मार्गदर्शन में करें। सो स्टूडेंट, दिस इज द explanation of the poem My Heaven, and in my next video lecture I will explain the poem in English. I think this is enough for today, and I will continue in my next video lecture. Okay, till that, have a nice day. Thank you.